Hello everyone, welcome back to my channel. So this is the lecture 8 from Complete Botany series for your upcoming GATE 2023 exam. In this lecture we are going to deal with one of the most important topic from plant anatomy, that is the difference between endarch and exarch xylem. So before understanding the exarch and endarch condition in the xylem, first we will understand that there is a different kind of xylem present in the plant. The main one is the primary xylem and the secondary xylem. So the xylem which is formed during the early stage of xylem development, that is known as primary xylem, and it is made of protoxylem and the metaxylem. The secondary xylem is the xylem tissue that is formed in the later stage of xylem development, and that is mainly developed from the vascular cambium. And this secondary xylem is responsible for the lateral growth of the stem. So I hope this is clear that in plant there are two kind of xylem, primary xylem and the secondary xylem. The primary xylem formed during the early stage of development and the secondary xylem formed during the later stage of development. Primary xylem is further divided into protoxylem and the metaxylem, and the secondary xylem developed from the vascular cambium, which is responsible for the lateral growth of the stem. So for understanding endarch and exarch condition, we have to only focus on the primary xylem, and we have to understand what is protoxylem and the metaxylem. So protoxylem is the primary xylem that develop first during the primary growth. So in the primary xylem itself, the xylem which form in the initial stage, that is protoxylem, and in the primary xylem, the xylem which develop in the later stage after the protoxylem formation, that is known as metaxylem. So protoxylem is the primary xylem that develop first during the primary growth, means जो हमारा प्रोटोजाइलम है दैट इज अ पार्ट ऑफ प्राइमरी जाइलम एंड वो पहले फॉर्म होता है, एंड मेटाजाइलम इज ऑल्सो पार्ट ऑफ प्राइमरी जाइलम बट इट इज फॉर्म आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोजाइलम. सो आई होप दिस इज विल बी मोर क्लियर थ्रू दिस डायग्राम. मीन्स यहाँ पे जो स्मॉल सर्कल्स आप देख रहे हैं दैट इज प्रोटोजाइलम, मीन्स ऐसा जाइलम जो पहले फॉर्म हुआ है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी जाइलम, एंड दिस लार्ज सर्कल्स आर मेटाजाइलम. ये वो जाइलम है जो लेटेस्ट स्टेज में फॉर्म हुआ है प्राइमरी जाइलम के डेवलपमेंट में. सो आई होप दिस इज क्लियर. प्राइमरी जाइलम इज मेड अप ऑफ प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम. दिस ब्लू वन इज all primary xylem and this large one are metaxylem and these small are protoxylem. So based on the orientation or arrangement of protoxylem and metaxylem, we classify the endarch and the exarch condition. So suppose this black one is our मेरिस्टेम जहाँ से हमारा जाइलम का फॉर्मेशन हो रहा है. सो दिस स्मॉल ग्रीन डॉट जो है ये है प्रोटोजाइलम दैट इज इनिशियली फॉर्मिंग. सो हमारा प्रोटोजाइलम का फॉर्मेशन हुआ, देन आफ्टर दैट मेटाजाइलम जो होगा डेवलप होगा. सो ये यहाँ पे जो लाइट ग्रीन कलर में है दैट इज मेटाजाइलम. सो दिस कैन बी वन कंडीशन कि प्रोटोजाइलम फॉर्म हुआ एंड आफ्टर दैट मेटाजाइलम फॉर्म हुआ एंड इट रिमेन इन दिस कंडीशन ओनली. एंड द सेकेंड कंडीशन क्या हो सकता है कि हमारा प्रोटोजाइलम का फॉर्मेशन हुआ, इनिशियली स्मॉल जो डॉट ग्रीन है डार्क कलर का दैट इज़ अ प्रोटोजाइलम, एंड जैसे ही प्रोटोजाइलम फॉर्म करने के बाद कुछ टाइम में लेटेस्ट स्टेज में मेटाजाइलम भी फॉर्म हुआ, बट ये मेटाजाइलम इस तरीके से फॉर्म हुआ दैट इट पुशेस द प्रोटोजाइलम टुवर्ड द इनसाइड. यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोटोजाइलम को मेटाजाइलम ने अंदर की तरफ पुश कर दिया है. सो दे कैन बी टू कंडीशन कि प्रोटोजाइलम जो है अपने ही स्टेज में रहे, जहाँ पे है उसकी प्लेस में रहे, एंड मेटाजाइलम जो है अंदर की साइड फेस करें. और सेकंड कंडीशन ये हो सकता है कि प्रोटोजाइलम फॉर्म होने के बाद जब मेटाजाइलम फॉर्म हो तो वो प्रोटोजाइलम की ओरिएंटेशन को चेंज कर दे, उसको अंदर की साइड को पुश अप करे. सो इसकी वजह से एंडार्च एंड एक्सार्च कंडीशन डेवलप होती है. अगर हम फर्स्ट कंडीशन को फॉलो करें जहाँ पे कोई भी ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो रहा, प्रोटोजाइलम अपनी ही स्टेज पे रह रहा है और मेटाजाइलम अंदर की तरफ फेस कर रहा है, दैट विल बी एक्सार्च कंडीशन. तो यहाँ पे जो मेटाजाइलम है इट इज़ फेसिंग टुवर्ड द इनसाइड एंड द प्रोटोजाइलम इज फेसिंग टुवर्ड द आउटसाइड. सो दैट कंडीशन विल रिजल्ट इनटू द एक्सार्च कंडीशन. यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट ग्रीन डार्क ग्रीन बिग स्पॉट्स आर मेटाजाइलम दैट आर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर एंड द प्रोटोजाइलम इज फेसिंग टुवर्ड द पेरिफेरी. तो यहाँ पे प्रोटोजाइलम इज toward the periphery and metaxylem is toward the center, that is the exarch condition. So you have to remember प्रोटोजाइलम जहाँ पे अंदर है that is जहाँ पे मेटाजाइलम अंदर है that is exarch condition. अगर सेकेंड केस में क्या होगा, अगर ओरिएंटेशन चेंज हुई, प्रोटोजाइलम इज पुश्ड टुवर्ड इनसाइड बाय मेटाजाइलम, सो दैट विल रिजल्ट इन द कंडीशन जहाँ पे मेटाजाइलम हमारा बाहर की तरफ फेस करेगा टुवर्ड द पेरिफेरी एंड द प्रोटोजाइलम विल बी टुवर्ड द सेंटर. सो दैट कंडीशन विल बी एंडार्च कंडीशन. सो आई होप दिस इज क्लियर कि एंडार्च एंड एक्सार्च कंडीशन क्यों फॉर्म होती है एंड हाउ इट इज़ बीइंग फॉर्म.
सो दिस इज द एंडाज कंडीशन जहाँ पे हमारा मेटाजाइलम इज टुवर्ड द पेरिफेरी एंड प्रोटोजाइलम इज टुवर्ड द सेंटर, एंड द एग्जाम्पल जो आपको ये देखने को मिलता है दैट कंडीशन इज मेनली फाउंड इन द स्टेम। आपको स्टेम में एंडाज कंडीशन देखने को मिलेगी, एंड इन द रूट यू कैन फाइंड द एक्साज कंडीशन जहाँ पे मेटाजाइलम इज फेसिंग टुवर्ड द सेंटर एंड प्रोटोजाइलम इज फेसिंग टुवर्ड द पेरिफेरी। सो यू हैव टू रिमेंबर ओनली वन थिंग, आपको अगर एंडाज कंडीशन याद है और उसका एग्जाम्पल याद है दैट एंडाज कंडीशन बिलोंग टू द स्टेम, और यहाँ पे प्रोटोजाइलम टुवर्ड द सेंटर एंड मेटाजाइलम टुवर्ड द पेरिफेरी। सो आपको उसका जस्ट अपोजिट करना है फॉर रिमेंबरिंग एक्साज कंडीशन। सो फॉर अवॉइडिंग द confusion you just remember one condition and example that endarch condition belong to the stem और जो भी यहाँ पे होता है, so it will be more easy to remember by this way. So we will see the difference between endarch and exarch condition. So the development from the center and having the oldest cell closest to the core of the xylem. तो यहाँ पे जो old cell होंगी that will be toward the core of xylem. The development from the periphery and having the youngest cell closest to the xylem means metaxylem is forming in the later stage and it is toward the core of xylem. And in this condition, protoxylem is forming first and it is toward the core of xylem. So protoxylem occur toward the center. यहाँ पे protoxylem endarch condition में toward the center है, and in this case exarch condition protoxylem is toward the periphery. Metaxylem occur toward the center. Metaxylem occur सॉरी यहाँ पे रॉन्ग मेंशन है, मेटाजाइलम विल अकर टुवर्ड द पेरिफेरी। तो इन द एंडाज कंडीशन जो मेटाजाइलम है ये पेरिफेरी के टुवर्ड होगा और यहाँ पे मेटाजाइलम जो होगा टुवर्ड द सेंटर होगा। इट अकर इन द स्टेम्स ऑफ सीड प्लांट और यहाँ पे ये रूट्स ऑफ द वेस्कुलर प्लांट। तो इट विल रिजल्ट इन द सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट एंड इट विल रिजल्ट इन द सेंटीपेटल अरेंजमेंट। सो यू हैव टू रिमेंबर कि प्रोटोजाइलम का ओरिएंटेशन पेरिफेरी के टुवर्ड है कि सेंटर के टुवर्ड है। एंड आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि आपको सिर्फ एक कंडीशन को याद रखना है, सो ऑटोमेटिकली आप उसका अपोजिट करके सेकंड कंडीशन को याद रख सकते हैं। एंड यू हैव टू रिमेंबर कि एंडाज कंडीशन का एग्जाम्पल स्टेम होता है एंड एक्साज का एग्जाम्पल रूट होता है। नाउ वी विल सॉल्व वन क्वेश्चन फ्रॉम गेट 2022 जो पूछा गया था गेट 2022 में, जिसमें पूछा गया है इन एंजियोस्पर्म नॉर्मली एक्साज कंडीशन कहाँ पे आपको देखने को मिलता है। सो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि एक्साज कंडीशन हमारा रूट में देखने को मिलता है, तो यहाँ पे रूट केवल एक ही ऑप्शन में होता है। सो डाइकॉट रूट इज़ द करेक्ट आंसर कि यहाँ पे एक्साज कंडीशन मेनली हमें जो देखने को मिलता है रूट्स में देखने को मिलता है, और यहाँ पे रूट एक ही ऑप्शन में है तो ऑटोमेटिकली हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाता है दैट इज़ डाइकॉट रूट। I hope this lecture was helpful to you. If you find it helpful, please like, share and subscribe to my channel. Thank you for watching this video.